ये ईशा में महाशिवरात्रि महोत्सव का 29वां वर्ष है और आज पूरी दुनिया से जो लोग इस महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, हम आप सभी का स्वागत करते हैं। इस रात होने वाली ग्रहों की अनूठी स्थिति प्राकृतिक रूप से मानव शरीर में ऊर्जा को एक शक्तिशाली तरीके से ऊपर उठाती है। इस दिन और रात को योग की परंपरा में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इस दिन आध्यात्मिक साधकों के लिए कई संभावनाएं मौजूद होती हैं। यह एक ऐसा समय है जब प्रकृति हमें हमारे आध्यात्मिक शिखर की ओर धकेल रही है। पूरी रात जगे रहकर और अपनी रीढ़ की हड्डी को खड़ी अवस्था में रखते हुए आप इन ऊपर चढ़ती ऊर्जाओं का लाभ उठा सकते हैं। आज रात हम आपको उल्लास भरी संगीत और नृत्य की प्रस्तुतियों, गहरी ध्यान प्रक्रियाओं, सद्गुरु के साथ सत्संग और कई दूसरी चीजों से जगाए रखेंगे। हम आशा करते हैं कि यह रात केवल जागरण की रात ही न हो, बल्कि आपके लिए एक चैतन्य जागृति की रात बन जाए, जिसमें उल्लासपूर्ण संगीत और नृत्य प्रदर्शन होंगे। மடியார் குமடியே தில்லை வாழந்தனத மடியார் குமடியே திருநீல கண்டத்து குயவனார் கடியேன் இல்லையே என்னாதைய பகை குமடியேன் இளையாத குடிமாற நடியார் குமடியேன் வெல்லுமா மிக வல்லமை பொருளு கடியேன் விரிபுழுசு குன்றையார் விரமிண்ட கடியேன் அல்லி வெண்முல்லையதரம நீதி கடியேன் ஆரூர் நாரூர் லம்மானு காலே
கடியேன் மெய்யடிய நரசிங்க முனையறைய கடியேன் பிரிதிரை சுழ்கடனாக அதிபத்தன் கடியேன் கை தடிந்த வரி சிலையன் கலி கம்பன் கலியன் கடசக்தி வலஞ்சய கொலடியார் குமடியேன் மையடிகள் காடவர் கொலடியார் குமடியேன் ஆரூரன் ஆரூரன் அம்மானுக்காரே கரை கண்ட கடலடியை காப்பு கொண்டிருந்த கனமுள்ள நம்பிக்கும் காரிக்கும் அடியேன் நிறை கொண்ட சிந்தையாலில் வேலி வென்றார் நின்ற சீர்நெடுமாறன் அடியார் குமடியேன் துறை கொண்ட செம்பவளம் இருளகற்றும் ஜோதி தொன்மயிலை வாயிலார் அடியார் குமடியேன் அலை கொண்ட வேலம் முன்னுவர் கடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்காரே கடல் சூழ்ந்த உலகெல்லாம் பார்க்கின்ற பெருமான் நாடவர் கொண்டட சிங்க நடியார் குமடியேன் மடல் சூழ்ந்த தானம் வீரங்கழிக்கும் தஞ்சை மன்னவனம் சிறு துணைதன் அடியார் குமடியேன் உடல் சூழ்ந்த புலி அதன் மேலரவாட ஆடி பொன்னடிக்கு மனமைத்த புகழ் துணை குமடியேன் கடல் சூழ்ந்த வேலம் விங்கோர் புலி குமடியேன் ஆரூரன் ஆரூரன் அம்மானுக்காரே பக்தராய் பணிவார்கள் எல்லார் குமடியேன் பரமனையே பாடுவார் அடியார் குமடியேன் சித்தத்தை சிவன் பாறை வைத்தார் குமடியேன் திருவாரூர் பிறந்தார்கள் எல்லார் குமடியேன் முப்போதும் திருமேனி தீண்டுவார் கடியேன் முழு நீரு பூசியா முனிவர் குமடியேன் அப்பாலும் அடி சார்ந்தார் அடியார் குமடியேன் ஆரூரன் ஆரூரில் அம்மானுக்காரே மன்னிய சிவரை நாவல் நின்ற ஊர் பூசல் பரிமலையனாலிக்கும் நேசலுக்கும் அடியேன் தென்னவனையுலகாண்ட சிங்கனார் கடியேன் திருநீல கண்டத்து பாணனார் கடியேன் தென்னவன மரலடியே அடைந்திட்ட சடையன் இசைஞானி காதலன் திருநாவலூர்கோன் அன்னவனம் ஆரூரன் அடிமை கேட்டு வப்பார் ஆரூரன் அம்மானு கண்பராவாரே ஆரூரன் அம்மானு கண்பராவாரே ஆரூரன் அம்மானு கண்பராவாரே ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ನಯನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ ನಯನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮೂರುತಿ ತುಂಬಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾಮಾಮೃತ ತುಂಬಿ
Namaskaram, ladies and gentlemen. नमस्कारम। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ईशा योग केंद्र में पहुंच चुकी हैं। आप उनकी तस्वीरें देख सकते हैं। वो अपनी कार में विराजमान हैं, जैसा कि हम उनका कार से उतरने का इंतजार कर रहे हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पिछले 4 दशकों में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया है और सभी क्षेत्रों के लोगों के साथ उनके कल्याण के लिए और विशेष रूप से उड़ीसा और झारखंड राज्य के लोगों के लिए अथक रूप से कार्य किया है। सद्गुरु माननीय राष्ट्रपति जी का ईशा योग केंद्र में फूलों की माला और शॉल भेंट करके स्वागत करेंगे। जैसा कि माननीय राष्ट्रपति जी अपने चरण पादुकाओं को उतारती हैं, सद्गुरु उन्हें एक फूलों की माला से उनका अभिनंदन करते हैं। They will first have a darshan of the Naga at the Naga Shrine, which is located at Surya Kund. The Surya Kund is a 130 by 40 feet subterranean water body surrounded by 200 giant granite stones, each weighing 45 to 50 tons, forming the bricks of the Kund. The two Tirtha Kunds at the Yoga Center, Surya Kund for men and Chandra Kund for women, serve as preparatory tools to help enhance one's spiritual receptivity to the Dhyana Linga. Traditionally, these kunds were built near Indian temples because when the body is wet, one can get better imbibe the energies of the temple. राष्ट्रपति महोदया सूर्यकुंड के सामने अपना आदर व्यक्त करते हुए राष्ट्रपति बहुत ही उत्सुकता के साथ उन्हें भेंट किए गए प्रसादम का निरीक्षण कर रही हैं और लगातार आदर व्यक्त कर रही हैं। योग परंपरा में और उसके साथ ही दुनिया भर के कई संस्कृतियों में सांप को बोध के एक साधन के रूप में पहचाना गया है। सांप उपचार का प्रतीक भी रहा है। अभी हाल ही में सद्गुरु ने स्वास्थ्य, समृद्धि, बाधाओं से उबरने और जीवन के रहस्यमयी आयामों की खोज के लिए सद्गुरु सन्निधि बेंगलुरु में एक शक्तिशाली नाग देवता की प्राण प्रतिष्ठा भी की है। नाग देवता की कृपा और ऊर्जा मनुष्य के समग्र स्वास्थ्य और भलाई के लिए अत्यंत सहायक है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू सूर्यकुंड में ये उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी कम करता है और शरीर का खोया हुआ स्वास्थ्य लौटाता है। यह शरीर को सांस, भोजन और मन के माध्यम से आने वाली अनेक प्रकार की अशुद्धियों और विषों को लेकर प्रतिरोधी बनाता है। सद्गुरु राष्ट्रपति के बाएं हाथ में अभय सूत्र बांध रहे हैं। अभय सूत्र का अर्थ है अभय यानी डर के बिना, सूत्र यानी धागा। यह सूत्र इंसान को किसी भी प्रकार के भय और किसी भी प्रकार के फियर से बचाता है। Nuances of the Abhay Sutra to the President. Our Honorable President will now proceed to the Surya Kund with Sadhguru.
Accompanying the President, we have the Minister for Information Technology and Digital Services, the Minister in Waiting, the representative of the Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru T. Mano Tangaraj. और सदगुरु अब ध्यानलिंग के बाहरी परिक्रमा की ओर बढ़ेंगे, जहां तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि श्री एम.पी. स्वामीनाथन उनका स्वागत करेंगे। श्री एम.पी. स्वामीनाथन तमिलनाडु के सूचना और प्रचार मंत्री हैं। The President, accompanied by Sadhguru. सदगुरु के साथ उनकी बेटी उनके साथ में हैं। जैसे कि सदगुरु और राष्ट्रपति महोदया सूर्यकुंड से बाहर आ चुके हैं और सदगुरु स्वयं उनको अपने साथ में गाड़ी को स्वयं चलाते हुए राष्ट्रपति महोदया को अपने साथ में लेते हुए नंदी की प्रतिमा के समक्ष प्रस्तुत होंगे। ध्यानलिंग के सामने नंदी विराजमान हैं। वे आदि योगी की कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। नंदी शाश्वत प्रतीक्षा का प्रतीक हैं, जिसे भारतीय संस्कृति में सबसे बड़ा गुण माना जाता है। प्रतीक्षा का गुण ग्रहणशीलता का सार है, क्योंकि जो व्यक्ति तीव्रता से प्रतीक्षा कर सकता है वो स्वाभाविक रूप से ध्यानी होता है। नंदी की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और उन्हें विभूति, हल्दी, तिल और अन्य प्राकृतिक पदार्थों से भरा गया है, जिसकी वजह से उनमें ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। माननीय राष्ट्रपति जी स्वयं सदगुरु के द्वारा गाड़ी में अगले पड़ाव की ओर ले जाई जा रही हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया और सदगुरु आप ध्यानलिंग की बाहरी परिक्रमा की ओर बढ़ेंगे, जहां तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल श्री आर.एन. रवि और तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि श्री एम.पी. स्वामीनाथन उनका स्वागत करेंगे। श्री एम.पी. स्वामीनाथन तमिलनाडु के सूचना और प्रचार मंत्री हैं। संस्कृत में ध्यान का अर्थ है ध्यान और लिंग का अर्थ है रूप। ध्यानलिंग एक शक्तिशाली और अद्वितीय ऊर्जा रूप है, जो योग विज्ञान का सार है। सदगुरु द्वारा 3 वर्षों की गहन प्रक्रिया के बाद 1999 में ध्यानलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। प्राण प्रतिष्ठा एक गूढ़ योग प्रक्रिया है, जो जीवन ऊर्जा के सदुपयोग से पत्थर को देवता में बदल देती है। राष्ट्रपति महोदया पास ही में सजे तमाम रथों को बहुत ही रुचि के साथ देखते हुए और लगातार सदगुरु के साथ बातें करते हुए सदगुरु बहुत जल्द आप अपने दाएं तरफ नंदी को विराजमान होते हुए देखेंगे। नंदी को भगवान शिव का वाहन बताया जाता है, जो कि अपने आप में शाश्वत प्रतीक्षा का प्रतीक हैं।
फूलों की भेंट नंदी को अर्पित करते हुए राष्ट्रपति महोदया आप तस्वीरों के माध्यम से राष्ट्रपति महोदया के साथ उनकी बेटी भी उनके साथ हैं। हमारे साथ तमिलनाडु के राज्यपाल स्वयं विराजमान हैं और वो भी पुष्प अर्पित करते हुए ये एक अवसर है इस बेहद सुंदर अवसर को तस्वीरों में कैद कर लेने का। सद्गुरु, राष्ट्रपति और उनकी बेटी नंदी के सामने एक विशेष तस्वीर के लिए। एक मुस्कान इस छवि को हमेशा हमेशा के लिए सजोले के लिए और अब माननीय राष्ट्रपति जी लिंग भैरवी देवी के मंदिर की ओर अग्रसर हैं। लिंग भैरवी दिव्य स्त्री तत्व की अभिव्यक्ति हैं। वो ब्रह्मांड के रचनात्मक और पोषण संबंधी पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। उनका त्रिकोण के आकार का निवास ध्यान लिंग परिसर के निकट है। लिंग भैरवी की ऊर्जा मानव प्रणाली में 3 मूल चक्रों को मजबूत करती है और इस प्रकार मनुष्य के शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली को स्थिर करती है। जो लोग तीव्रता से जीवन को जीना चाहते हैं उनके लिए देवी की उपस्थिति और कृपा सहायता करती है। चाहे कोई भक्त जीवन के भौतिक पहलुओं को प्राप्त करना चाहता हो, आनंद लेना या पार करना चाहता हो, देवी किसी भी प्रकार की आकांक्षाओं में सहायता करती है। चाहे वो धन हो, ज्ञान हो या पारलौकिक, देवी सबकी परम दाता है। By the governor and the minister in waiting and Sadhguru proceed forward. राष्ट्रपति महोदया और सद्गुरु देवी लिंग भैरवी के स्थान की ओर आगे बढ़ते हुए There are many rituals one can offer to अपने receive जीवन the में grace भैरवी of की कृपा पाने के in लिए one's life. कई प्रकार के अनुष्ठान किए जा सकते हैं। माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय राज्यपाल, मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि श्री MP स्वामीनाथन और सद्गुरु देवी मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। वे ईशा संस्कृति के छात्रों के एक समूह के पास से गुजर रहे हैं जो देवी की स्तुति का गान कर रहे हैं। Sadhguru explaining the various aspects of the Isha Yoga Center and the सद्गुरु consecrated ईशा योग spaces. केंद्र के प्राण प्रतिष्ठित स्थानों के अलग अलग पहलुओं के बारे में राष्ट्रपति महोदया को वर्णन कर रहे हैं। We are at the Devi's abode now. हम लिंग भैरवी देवी के निवास स्थान के नजदीक हैं And you can feel her presence और आप उनकी उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। as the Honorable President, accompanied by the Governor, माननीय R.N. Ravi, राष्ट्रपति महोदया her daughter, राज्यपाल के साथ में, अपनी बेटी के साथ में लिंग भैरवी के निवास स्थान के नजदीक हैं। the Minister in waiting,
and Sadhguru all proceeding into the Devi's सभी sanctum. गणमान्य अतिथिगण इस समय लिंग भैरवी देवी के मंदिर के अंदर प्रविष्ट हो रहे हैं। The sacred banyan tree or the Vatavriksha लिंग भैरवी के निवास लिंग में भैरवी's वट वृक्ष abode यानी पवित्र बरगद का plays a पेड़ significant दाह role निवारण in में एक दाह महत्वपूर्ण निवारण। भूमिका निभाता है, जो किसी भी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। यह अनुष्ठान है माननीय राष्ट्रपति महोदया बरगद के पेड़ को तीर्थम या पवित्र जल अर्पित करेंगी। जैसा हमने बताया कि ये वट वृक्ष दाह निवारण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माननीय राष्ट्रपति महोदया बरगद के पेड़ को तीर्थम यानी पवित्र जल अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति महोदया देवी के त्रिशूल पर घी का दीपक भी अर्पित करेंगी। देवी के त्रिशूल पर दीपक अर्पित करना और दीपक जलाना समर्पण और ऊपर उठने के और भीतर के अंधेरे को दूर करने की इच्छा का प्रतीक है। सभी गणमान्य अतिथि घी के दीपक का अर्पण करेंगे। जैसा हमने बताया, बाहर उपस्थित देवी का त्रिशूल समर्पण और ऊपर उठने और भीतर के अंधेरे को दूर करने की इच्छा का प्रतीक है। राष्ट्रपति महोदया अब लिंग भैरवी के आंतरिक गर्भगृह की ओर बढ़ चुकी हैं। जय भैरवी भैरवी जय भैरवी The President explaining the finer qualities and finer nuances of what is taking place at the Trishul to her daughter. राष्ट्रपति महोदया स्वयं अपनी बेटी को त्रिशूल के महत्व के बारे में बताते हुए Soon, the President moves towards the inner sanctum of Linga Bhairavi, where she will offer Samarpanam. राष्ट्रपति महोदया अब लिंग भैरवी के आंतरिक गर्भगृह की ओर बढ़ चुकी हैं, जहां वो देवी को समर्पण अर्पित करेंगी। समर्पण में व्यक्तियों व परिवारों की भलाई के लिए देवी को नारियल, कुमकुम, हल्दी, सुपारी, चमेली के फूल, बेलपत्र और नीम के पत्ते एवं नैवेद्यम चढ़ाया जाता है। इसे देवी मंदिर के गर्भगृह में आरती के साथ अर्पित किया जाता है। All the Samarpanam
being offered to the Devi. सभी प्रकार के अर्पणम देवी को समर्पित किए जा चुके हैं। वरदरक्षिणी मुक्तिदायिनी देवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी भैरवी जय भैरवी। The coconuts being cracked there. नारियल के फल का अर्पण किया जा रहा है और जिसे तोड़कर मां लिंग भैरवी के सामने अर्पित किया जा रहा है। सभी गणमान्य अतिथि प्रसाद के मिलने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। Stabilize one's body, mind, and energy system. त्रिकोण आकार का निवास ध्यानलिंग परिसर के निकट है। लिंग भैरवी की ऊर्जा मानव प्रणाली में 3 मूल चक्रों को मजबूत करती है और इस प्रकार मनुष्य के शरीर, मन और ऊर्जा प्रणाली को स्थिर करती है। A moment of stillness and concentration. ध्यान और स्थिरता का प्रतीक देवी लिंग भैरवी। भैरवी जय भैरवी